Praise Jesus, hallelujah. سب تشریف رکھیں گے اور ہم کلام کی طرف چلیں گے. گزشتہ کئی مہینوں سے میں اس کوشش میں تھا کہ میں یہ پیغام دوں مسیحی ازدواجی زندگی کرسچن میرڈ لائف پر. ممکن نہ ہو پایا پر اس ہفتے کہ آغاز کے اندر ہی خدا کے پاک روح نے مجھ سے بات کی کہ میں اس مضمون پہ اس ٹاپک پہ بات کروں, کیونکہ یہ موجودہ کلیسیا کی ضرورت ہے اور ابلیس بڑی بری طرح لوگوں کی شادی شدہ زندگی کو تباہ و برباد کرنے لگا ہوا ہے. پر یاد رکھیں کہ جب تک ہمارے پاس اس دنیا کے اندر خدا کا زندہ کلام ہے, ابلیس ہماری زندگیوں کو نہیں چھیڑ سکتا. ہاللیلویہ. جب تک ہم اس کی روشنی میں, جب تک ہم اس کی رہنمائی کے اندر اپنی زندگی گزارتے رہیں گے, ابلیس کا ہم پہ کوئی قبضہ, کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس بات پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ مل کے نکالیں. آج ہم دیکھیں گے, ممکن ہے کہ آنے والے 1-2 ہفتے ہم اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں. میں اسی ٹاپک کے بارے میں جس طرح خدا کا پاک روح مجھے گائیڈ کرے میں آپ کو بتاؤں گا. آج کی جو ہماری مرکزی آیت ہے وہ ہے پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 7ویں آیت پڑھیں گے. اے شوہرو, تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو, اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. ہاللیلویہ. آپ نے اس حوالے کے اندر 2 باتوں کو یاد رکھنا ہے. پہلی بات کہ ہم دونوں, کن کی بات کی گئی ہے؟ یہ میاں اور بیوی کی بات کی گئی ہے. زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. پہلی بات ہم نے دیکھنی ہے کہ ہم میاں بیوی جو ہیں وہ زندگی کی نعمت کے وارث ہیں, اور دوسری بات, کیا ہماری دعائیں تو نہیں رک رہی؟ کیا ایسی باتیں بیچ میں تو نہیں آ گئی جس کی وجہ سے ہماری دعائیں خدا تک نہیں پہنچ رہی؟ کیا ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ ٹھیک ہے؟ کیا ہم حقیقی مسیحی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں؟ آج ہم کلام مقدس کی روشنی میں اس بات کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے. یاد رکھیں کہ ایک مسیحی ازدواجی زندگی کا سب سے پہلا بڑا اور بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر زندگی گزارتے گزارتے میاں بیوی دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہو جاتے ہیں, یعنی ابدی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں اور خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنا سیکھ جاتے ہیں. میری بات کو دھیان سے سنیے گا. اگر ہم اچھی مسیحی زندگی گزار رہے ہیں, یعنی شادی شدہ زندگی بات کر رہا ہوں, اگر ہم اس میں کامیاب ہیں, ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم نے آپس میں کیسے زندگی گزارنی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے خدا کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے. بڑا گہرا تعلق ہے ان 2 باتوں کا. اگر آپ حقیقی مسیحی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ حقیقی مسیحی زندگی بھی گزار رہے ہیں, کیونکہ بیوی کے ساتھ وفاداری یا خامند کے ساتھ وفاداری خدا کے ساتھ وفاداری کو بھی ظاہر کرتی ہے. اور جس طرح ابلیس اس روئے زمین کے اوپر مختلف طریقے سے بربادی پیدا کرتا ہے, مختلف چیزوں کو ڈسٹرائے کرتا ہے, ان چیزوں میں جو سب سے بڑی چیز, سب سے بڑا کام ابلیس جو اس دنیا میں زمانہ ابتدا سے کرتا آ رہا ہے وہ ہے میاں بیوی کے اندر لڑائی جھگڑا, میاں بیوی کے اندر تفرقے, میاں بیوی کے اندر مقابلہ بازی, میاں بیوی کے اندر نفرت, میاں بیوی کے اندر علیحدگی, جدائیاں. یہ کام ابلیس کرتا آ رہا ہے, اور مرد عورت کو بلیم کرتا ہے, عورت مرد کو بلیم کرتی ہے. اور یہ بلیم گیم ابھی سے نہیں چلتی آ رہی, یہ زمانہ ابتدا سے چلتی آ رہی ہے. باغ عدن سے اس کا آغاز ہوا جب ابلیس نے
हवा से नाफरमानी करवाई तो उसके अंदर सबसे पहले उसने खौफ को डाला, और दूसरी बड़ी बात जो उसने उसके अंदर प्लांट की वो थी ब्लेम, इल्जाम तराशी। और खुदा के पूछने पे आदम ने हवा को ब्लेम किया, ब्लेम ने सांप को ब्लेम किया। यानी ये ब्लेम गेम जो है ये मसीही अज़दवाजी जिंदगी की बर्बादी की जड़ है। हमें देखना है कि क्या हम अपने जीवन साथी के ऊपर किसी तौर से इल्जाम तराशी तो नहीं कर रहे हैं। क्या हम कलाम के मुताबिक उसके साथ सिंसियर हैं? क्या हमारी जिंदगी कलाम के मुताबिक है या नहीं? मगर अफसोस की बात यह है कि बहुत से ईमानदार, बहुत से, जब मैं बोलूंगा तो बहुत से ईमानदार का मतलब है कि मेरे पास बेशुमार लोग इस बात के लिए आते हैं कि मैं उनके लिए दुआ करूं, और खुदा ने मुझे बोझ दिया कि मैं जब उनकी काउंसलिंग करूं तो उनको कलाम की चीजों से उनकी तसल्ली बनूं कि किस तरह से उन्होंने अपने जहन को और दिल को अपने जीवन साथी के लिए ढालना है। और इसी वजह से आज शायद खुदा ने ये मुमकिन किया कि मैं आपके साथ भी ये बात कर सकूं, क्योंकि कलीसिया को जरूरत है इस बात की। मगर याद रखें कि जो शख्स इस भेद को जान गया है, जिसको ये मुकाशफा मिल गया है कि किस तरह से उसने एक हकीकी अज़दवाजी जिंदगी गुजारनी है, वो अपनी जिंदगी के अंदर इत्मीनान के अंदर है, वो जिंदगी में दाखिल हो चुका हुआ है, वो जिंदगी की नेमत का वारिस बन चुका है। और आने वाले दिनों, महीनों, सालों में वो जिस तरह से यहां पर जिंदगी गुजार रहा है, इसी दयानतदारी से वो आसमानों में जिंदगी गुजारेगा। हालेलुया। खुदा हमें सिखाता है। इसलिए पतरस कहता है कि मियां और बीवी दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। हम देखेंगे कि क्यों आदम और हवा जिंदगी की नेमत के वारिस ना ठहर सके, क्यों उनसे जिंदगी ले ली गई, क्यों वो जिंदगी से महरूम कर दिए गए, क्यों उनको बाग़ अदन से निकाल दिया गया, क्या वजूहात थी और क्या चीजें हमने अपनी जिंदगी में करनी है जिसके वसीला से हम जिंदगी की नेमत के वारिस हो और हमारी दुआएं ना रुक जाएं। ये दो बातें याद रखें, हमारी दुआएं ना रुक जाएं और हम जिंदगी की नेमत के वारिस हो। पहली बात जो एक अच्छी मसीही अज़दवाजी जिंदगी के अंदर जरूरी है, वो है कि हमें अपने खानदानों से अलहदा रहना है। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? हमें अपने खानदानों से अलहदा रहना है, यानी कोई तीसरा शख्स खुदा नहीं चाहता एक मियां बीवी के अंदर। खुदा चाहता है कि मियां और बीवी अलहदा रहे, अपने खानदान से जुदा होकर। जुदाई का मतलब बुराई नहीं है, याद रखें, कि लड़ाई झगड़े करके अलहदा होना, नहीं, वैसे ही अलहदा होना है, क्योंकि ये कलाम का फैसला है। एक हकीकी मसीही अज़दवाजी जिंदगी का पहला कानून है, ये पहला कुलिया है। ये खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने क्या बोला, निकाले, हम पढ़ेंगे पैदाइश 2 उसकी 23 और 24 आयत पढ़ें जी जरा। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। हाँ जी, यहां पर खुदा ने पहला कानून क्या दिया कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और किससे मिला रहेगा जी? बीवी से। ये किसने बोला? ये किसने बोला? ये खुदा ने बोला। यहां पे बज़ाहिर नजर आता है कि ये आदम बात कर रहा है, पर ये आदम बात नहीं कर रहा, ये खुदा का कानून है। निकाले मत्ती की अंजील 19 बाब की 4 आयत पढ़ें जी जरा। मत्ती की अंजील 19:4। उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तिदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द अपने बाप से और माँ से जुदा होकर बीवी के साथ रहेगा। बस, हाँ जी, किसने? जिसने उनको बनाया
یعنی خدا نے ان کو بنایا اور خدا نے بولا کہ مرد اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر اپنی بیوی سے ملا رہے گا. اس کا جو ہیبرو بائبل میں جو اس کا ایگزیکٹ ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے سیپریٹ یونٹ, علیحدگی. ہمارے معاشرے کے اندر ہونے والی شادیوں کی تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ علیحدہ نہیں رہتے بلکہ ان کو اپنے والدین کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, جو کہ خدا کے قانون کے خلاف ہے. بائبل اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں. ہم کلام مقدس سے زیادہ جب اپنے کلچر کو, اپنے کسٹمز کو اہمیت دیتے ہیں تو ہم بربادی کی طرف چل پڑتے ہیں. یاد رکھیں, خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہم کس کلچر کا حصہ ہیں. خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہم کہاں رہتے ہیں, ہماری رسم و رواج کیا ہیں. خدا بات کرتا ہے کلام کی. میں اس بات کو جانتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے کلچر میں بہت سے مسئلے مسائل ہیں. یہ اتنا آسان نہیں کہ ہم علیحدہ رہیں, مگر یہ سچائی ہے. کلام یہ کہتا ہے کہ مرد اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا اور وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم, ایک تن ہو گئے. یہ پہلا قانون ہے. خدا نے ابراہیم کو کب برکت دی؟ جب اس نے اپنے باپ کے گھرانے کو چھوڑا. لیکن خدا نے بولا کہ تو اپنے باپ کے گھرانے, اپنے ناتا داروں کو چھوڑ اور اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا, اور میں تجھے برکت دوں گا اور بڑی قوم بناؤں گا. خدا ابراہیم کو اس کے باپ کے گھرانے میں بھی برکت دے سکتا تھا, مگر خدا کا پیٹرن کیا ہے؟ سیپریٹ یونٹ. خدا نہیں چاہتا کہ میاں بیوی اور خدا کے درمیان کسی قسم کی کوئی ہنڈرنس ہو, کوئی رکاوٹ ہو, کوئی غلط فہمی ہو, کوئی دھوکے بازی ہو, کوئی ملاوٹ ہو. خدا چاہتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ خدا کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ ہو. کسی کو خدا نہیں چاہتا. یعقوب کو اس وقت برکت دی جب اس کو اس کے باپ کے گھرانے سے جدا کیا گیا. یوسف کو اس وقت برکت دی جب اس کے باپ کے گھرانے سے جدا کیا گیا. تب جا کے وہ ملک مصر کا حاکم بنا. سیپریشن. موسیٰ کو خدا نے استعمال کرنے سے پہلے بچپن سے ہی اس کے والدین سے جدا کر دیا. اس کے پیچھے بھید کیا ہے؟ بھید یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر جوڑا, ہر مرد اور ہر عورت جب شادی شدہ ہو جائے تو وہ اپنے جسمانی والدین کی طرف نہ دیکھے بلکہ اپنے آسمانی باپ کی طرف دیکھے. جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے بھی ہو جاتے ہیں, ہم کسی مشکل, کسی دکھ میں پڑتے ہیں تو ہم کس کے پاس بھاگتے ہیں؟ اپنے باپ کے پاس. اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ میرا باپ مجھے اس بات سے نکالے گا. ہم جانتے ہیں کہ ہم کیسی بھی دکھ میں ہوں گے, ہمارا باپ ہمیں نکال لے گا. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے جسمانی باپ سے نظریں ہٹا کے اپنے آسمانی باپ کی طرف نظریں لگائیں. یہ خدا چاہتا ہے. پالوس رسول جب اس بات کو بیان کرتا ہے تو وہ اس کو بھید سے تشبیہ دیتا ہے. اگر آپ پڑھیں افسیوں 5 میں لکھا ہے کہ اس سبب سے آدمی باپ اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. یہ بھید تو بڑا ہے, لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں. اب اس کے اندر مشکلات بہت ہیں, پریشانیاں بہت ہیں. یاد رکھیں, خدا کو ہمارے والدین سے کوئی مسئلہ نہیں, اور نہ یہ بات ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی عزت نہیں کرنی, ان کی خدمت نہیں کرنی, ان کے بڑھاپے میں ان کو سنبھالنا نہیں. ہمیں ان کی خدمت بھی کرنی ہے, ان کو ان کے بڑھاپے میں سنبھالنا بھی ہے, ان کی ضروریات کو پورا بھی کرنا ہے. مگر بائبل یہ کہتی ہے کہ میاں اور بیوی کو سیپریٹ یونٹ لے کے رہنا ہے. مشکل بات ہے, میں جانتا ہوں ہمارے کلچر کے لیے بڑی مشکل بات ہے, مگر یہ سچ ہے.
ہم سچ سے منہ نہیں موڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات میاں اور بیوی کی مسیحی ازدواجی زندگی کے وسیلہ سے یعنی اچھی مسیحی ازدواجی زندگی کے وسیلہ کس طرح سے وہ زندگی کی نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں، جب وہ دونوں میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو دو نہیں بلکہ ایک سمجھتے ہیں، ایک خیال ہے، ایک ارادہ ہے، ایک منصوبہ ہے، ایک بات پر متفق ہے، ان کے دکھ ایک ہیں، ان کی مشکلات ایک ہیں، ان کی خوشیاں ایک ہیں، ان کے غم ایک ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے دکھوں میں ایک دوسرے کے لیے دکھ کا نہیں بلکہ خوشی کا باعث ہے۔ دونوں کا دکھ ایک ہے۔ کیا لکھا کہ وہ ایک تن ہوں گے، ایک جسم۔ جب ایک میاں اور بیوی ایک دوسرے کو ایک سمجھتے ہیں جس طرح خدا نے ان کو کریٹ کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ ایک حقیقی مسیحی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں خدا نے ان کو ایک تن کیا؟ کیوں خدا نے بولا کہ وہ ایک ہیں دو نہیں؟ کیا ریزن تھی؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ ان دونوں کو جب تخلیق کیا گیا ہے تو یہ ایک وقت تخلیق کیے گئے ہیں، ایک ٹائم کے اندر اور ایک طرح سے تخلیق کیے گئے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدم اور حوا کو دو مختلف وقتوں میں تخلیق کیا گیا، نہیں، ان کو ایک وقت میں تخلیق کیا گیا ہے، مگر ان کو جسم دو مختلف وقتوں کے اندر دیے گئے۔ پر ان کی کریشن جو تھی، جب ان کو تخلیق کیا گیا، ان کو پیدا کیا گیا، تو ان کو ایک ٹائم میں ایک ساتھ تخلیق کیا گیا۔ میرے سے نکالیں پیدائش پہلا باب اس کی 26 آیت پڑھیں جی ذرا۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ ہاں جی آگے پڑھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ ہاں جی، یہ ان کی کریشن ہے، یہ کریٹ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ان کو کیا لکھا ہے کہ خدا نے ان کو نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اور پھر اگر آپ ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم آگے حوالے پڑھیں، دوسرے باب کو آپ جا کے پڑھیے گا کہ پہلے خدا نے آدم کو جسم دیا، اور پھر آدم کو جسم دینے کے بعد آدم کے اوپر نیند بھیجی اور اس کی پسلی میں سے ہوا کو نکالا۔ مگر پہلے باب کی 26 آیت کے اندر ہمیں نظر آتا کہ خدا نے ان کو ایک وقت میں کریٹ کیا۔ اور خدا چاہتا کیا ہے؟ خدا چاہتا یہ ہے کہ جس طرح سے ان کو میں نے ایک ٹائم میں کریٹ کیا، یہ مرتے دم تک ایک دوسرے کو ایک سمجھے، نہ کہ دو۔ یہ ہم خیال، ہم ارادہ، ہم جان، یک جان ہو۔ اور جب ہم ایک دوسرے کو ایک جانتے ہیں، دو نہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم حقیقی مسیحی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ابلیس بہت سے میاں بیوی کو ایک رہنے نہیں دیتا۔ ابلیس جتنا اس رشتے پہ حملہ کرتا ہے، کسی رشتے پہ نہیں کرتا۔ اس کا سب سے زیادہ جو حملہ ہے وہ میاں بیوی کے اوپر ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ صرف اس رشتے کے پاس یہ نعمت، یہ برکت ہے کہ یہ زندگی حاصل کرے اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ خدا نے اس رشتے کو زندگی کے ساتھ منسوب کر دیا ہے، یعنی جوڑ دیا ہے۔ میاں اور بیوی زندگی کی نعمت کے وارث ہیں۔ کوئی اور ایسا رشتہ نہیں جس کے ساتھ آپ ایک ہو سکے، ایک تن ہو سکے۔ صرف ایک ہی رشتہ ہے جو ایک بنایا گیا ہے اور ایک ہو سکتا ہے، اور وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ خدا اس رشتے کے اندر محبت کو ڈھونڈتا ہے،
खुदा इस रिश्ते के अंदर प्यार को ढूंढता है, खुदा इस रिश्ते के अंदर एतबार को ढूंढता है, खुदा इस रिश्ते के अंदर वफादारी को ढूंढता है कि ये रिश्ता वफादार हो, ये प्यार करने वाला हो, ये एतबार करने वाला हो, इसकी आपस में हम आंगी हो, ताकि ये जिंदगी की नेमत को हासिल करे और इसकी दुआएं रुक ना जाएं। इस कायनात का, इस दुनिया का सबसे पहला रिश्ता मियां बीवी का यही रिश्ता था। खुदा और भी कोई रिश्ता बना सकता था, बाप बेटे का रिश्ता बना सकता था, मां बेटी का रिश्ता बना सकता था, मगर खुदा ने नहीं बनाया। खुदा ने पहला रिश्ता क्या बनाया? मियां और बीवी का। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप हकीकी मसीही अज़दवाजी जिंदगी गुजारें तो अपने जीवन साथी को अपनी मानिद समझें। मैं आने वाले दिनों में आपको इफिसियों के खत में से और करंथियों के खत में से कुछ चीजें बताऊंगा कि पौलुस कहता है कोई अपने जिस्म को दुख देता है, अगर हम अपनी बीवी को दुख देते हैं या बीवी खामद को दुख देती है तो दूसरे लफ्जों में आप अपने ही बदन को दुख देते हैं। और बाइबल कहती है कि ऐसा नहीं करना है, हमें एक दूसरे को एक समझना है, ना कि दो। इसीलिए खूबसूरत बात क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को इस रिश्ते से तशबीह दी है। यीशु मसीह हमारा क्या है? दुल्हा है, और हम उसी क्या है? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके साथ एक हो जाएं। हालेलुया! हम ख्याल हो जाएं, एक जान हो जाएं, हमारी उसके साथ यगानगत हो जाए, हमारी सोचें उसके साथ तो मिल जाएं और हम यीशु के वसीला से जिंदगी की नेमत के वारिस हो जाएं। हालेलुया! इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को भी इस रिश्ते के साथ मिला दिया है। उसने हमें दुल्हन बना लिया है और वो हमारा दुल्हा है। ये वैल्यू है मियां और बीवी की। समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। क्या हम अपनी बीवी को प्यार करते हैं? क्या हम उसके दुखों में शरीक हैं? क्या हम अपने खामंद की केयर करते हैं? नहीं तो आज से अपने जीवन साथी को और अपने आप को एक जाने, ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है कि हमें मियां बीवी होते हुए अपने इस रिलेशन के अंदर खुदा की मर्जी को जानना है। क्या जानना जी? खुदा की मर्जी को जानना है। खुदा यह चाहता है कि छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात मियां बीवी मुझसे डिस्कस करें। इसलिए पहली बात की गई है, उनको सेपरेट किया गया है कि ये किसी और से डिस्कस ना करें, मुझसे डिस्कस करें, मेरी मर्जी शामिल करें, मेरे से बात करें, अपने दुखों में मेरे पास आएं, अपनी मुश्किलों में मेरे पास आएं, अपने कामों में मेरी मर्जी को जानें। आप जानते हैं कि आदम और हवा की बर्बादी का सबब क्या बात बनी थी? उनकी बर्बादी का सबब यह बात बनी थी कि उन्होंने खुदा की मर्जी नहीं बल्कि अबलीस की मर्जी को पूरा किया। खुदा की मर्जी क्या थी? खुदा ने क्या बोला था कि इस दरख्त का फल ना खाना, यह उसकी मर्जी थी। जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा, उसने बता दिया, उसने अपनी मर्जी बता दिया कि इसको ना खाना, जिस रोज खाएगा तू मर जाएगा। और अगर आप उस दरख्त के बारे में देखें जो कि उर्दू में लिखा गया है नेकोबद का दरख्त, और इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया वो है ट्री ऑफ नॉलेज, और हयात के दरख्त के लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज किया गया ट्री ऑफ लाइफ। यानी खुदा यह चाहता था कि आदम और हवा इस इल्म को, इस नॉलेज को हासिल ना करें। जिंदगी तो उनके पास थी, वो हर बात के लिए मेरे पास आए, मुझसे डिस्कस करें, मेरी मर्जी जाने कि मैं क्या चाहता हूं। मगर हवा ने खुदा की मर्जी को जानना बेहतर ना समझा, बल्कि उसने खुद खुदा बनना चाहा। उसने बोला मैं रोज क्यों खुदा के पास जाती रहूंगी, मुझे ये बता, मुझे ये बता, मुझे ये बता। उसने कहा मैं एक ही बार
सारा इल्म ले लेती हूं, मैं खुदा बन जाती हूं। उसने खुदा बनने की कोशिश की, उसने खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में शामिल ना किया, बल्कि खुदा बनना चाहा। और नतीजा क्या निकला? मौत और हलाकत। फर्ज कर लें कि अगर आदम इस दरख्त में से ना खाता, हवा ना खाती इस दरख्त में से, तो क्या फायदा होता? पहला फायदा यह होता कि वो बदी को ना जानता, नेकी उसमें मौजूद थी, क्योंकि वो खुदा की छवि पर था। खुदा जो कि नेकी का मंबा है, उसने अपने एट्रीब्यूट्स में से उसमें ये नेकी का एट्रीब्यूट रखा हुआ था। वो नेकी को जानता था पर बदी से वाकिफ नहीं था। पहला फायदा यह होता कि वो बदी को ना जानता। दूसरा फायदा क्या होता कि वो मरता ना, जिंदा रहता। खुदा ये चाहता था कि ये इस नॉलेज को हासिल ना करे, बल्कि अपनी जिंदगी के नॉलेज के लिए मेरे पास आता जा रहा करे, मेरी मर्जी को जाने और जिंदा रहे। पर हवा को यह बात पसंद ना आई और उसने खुदा के बराबर होने को ज्यादा बेहतर समझा। खुदा की मर्जी से ज्यादा इब्लीस की मर्जी को पूरा किया और उनकी जिंदगी हलाकत और बर्बादी की तरफ चल पड़ी। एक हवाला पढ़ लें, पैदाइश 3 की 4 आयत पढ़ें जी जरा। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज न मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। हाँ जी, बस हवा ने इस बात को अहमियत दी कि मैं ट्री ऑफ नॉलेज में से कुछ ले लूं ताकि मैं खुदा की मर्जी को हर वक्त ना जानूं, मैं खुद खुदा बन जाऊं। बहुत दफा हम अपनी जिंदगी के मामलात के अंदर, अपनी कामों के अंदर खुदा की मर्जी नहीं जानते, बल्कि हम खुद खुदा बनना चाहते हैं। मैं ये कर सकता हूं, हम ये करेंगे, हमारे पास पैसा है, हम ये कर सकते हैं, हमारे रिसोर्सेज से हम ये काम कर सकते हैं। हम खुदा की मर्जी को नहीं जानते, हम उसकी मर्जी को पूरा नहीं करते। इस वजह से हमारे खानदान, हमारे अज़दवाजी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पर अगर हम मियां और बीवी जो हैं, वो छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात में खुदा के पास जाते हैं, खुदावंद मुझसे बात कर, क्या मैं अपनी औलाद के लिए करूं या ना करूं, क्या मैं अपना रोजगार तब्दील करूं या ना करूं, क्या मैं तेरा ये काम करूं या ना करूं। छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात में पाकरू आपकी मदद करने वाला है। तजर्बा करके देखें। पर जब हम उसकी मर्जी को नहीं जानते तो हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। पहली बात हमने क्या देखी? सेपरेट यूनिट। दूसरी बात एक जानना। तीसरी बात अपनी जिंदगी के हर काम में खुदा की मर्जी को जानना। और चौथी बात क्या है? मियां और बीवी को आपस में इज्जत और मोहब्बत से रहना है। याद रखें कि इज्जत और मोहब्बत का आपस में बड़ा गहरा तल्लक है। अगर आप अपनी बीवी को मोहब्बत करते हैं उससे, पर उसकी इज्जत नहीं करते, तो उस मोहब्बत का कोई फायदा नहीं। और अगर आप अपनी बीवी की इज्जत करते हैं और उससे मोहब्बत से नहीं करते, और मोहब्बत से खाली हैं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। हमारे मुआशरे के अंदर इस चीज का फुकदान है। हमारा मुआशरा औरत की इज्जत नहीं करता। हमारी मरकजी आयत में क्या लिखा है? औरत को नाजुक ज़फ़ जानकर, इंग्लिश में लिखा है वीकर वेसल, कमजोर, नाजुक जानकर उसकी इज्जत कर। और हमारा मुआशरा इस बात से बहुत दूर है। हम मोहब्बत बहुत करते हैं अपनी बीवी से, मगर गलती से अगर गुस्सा चढ़ जाए, ओ हो, सारी मोहब्बत खत्म। ऐसे ही है, मोहब्बत खत्म हो जाती है हमारी। हम उसकी इज्जत नहीं करते। याद रखें, इज्जत का एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि गुस्से में,
परेशानी में, दुख में करने वाला है। मोहब्बत में तो सब इज्जत करेंगे, आप किसी से मोहब्बत करते हैं आप सब कुछ करेंगे उसकी खातिर, पर अगर आपको गुस्सा आ गया, अब आपने देखना कि आप उसकी इज्जत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जिस रिश्ते के अंदर मोहब्बत और इज्जत दोनों मौजूद नहीं है, वो बर्बादी के दहाने पर है। खुदा ये चाहता है कि मियां और बीवी एक दूसरे की इज्जत करें। बहुत सारे लोग इस बात को तौहीन समझते हैं कि जी औरत की इज्जत करें हम। हमारे मुआशरे में अगर मर्द ऊंची आवाज में बात करे तो वो मर्द है, उसकी शान है ये, क्योंकि वो मर्द है। और अगर औरत अपने हक के लिए ऊंची आवाज में बात करेगी तो वो बदजुबान है। हमने क्या देखा, वो दोनों इक्वल हैं, एक तन एक दिन एक तरह से मुरत्तब किए गए हैं। हमारे मुआशरे में औरत को पांव की जूती कहा जाता है और ट्रीट किया जाता है। उसको गुस्सा करने का कोई हक नहीं, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं, उसका अपना कोई इरादा नहीं, वो कोई राय नहीं दे सकती, वो कोई फैसला नहीं कर सकती, सब कुछ मर्द करेगा। मैं इसमें इस बात में कोई शक नहीं कि मर्द सर है, पर औरत भी जूती नहीं है, याद रखें। वो आपके इक्वल, आपके बदन का हिस्सा है। और जो लोग इस बात को मिस कोट करते हैं, मैं अगले हफ्ते बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं जी खुदा ने हुकूमत दी है औरत पे। वो हुकूमत किस बात में दी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीक। हुकूमत इस बात में नहीं कि तुसी हर दूजे दिन उनका फांडा लाओ। हुकूमत के मायने कुछ और है, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीक में। औरत की इज्जत करनी है, उससे मोहब्बत करनी है। कुलसियों 3 बाब की 19 आयत में लिखा है, आए शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। और आप जानते हैं कि बाइबल यह बयान करती है कि खुदा 2 चीजों से बेजार है। मलाकी की किताब उसके दूसरे बाब में लिखा कि मैं तलाक से और उस शख्स से जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, मैं उससे बेजार हूं। जुल्म का मतलब हरगिज ये नहीं कि आप औरत को मारें। जुल्म की बहुत सी इकसाम है। अगर आप अपनी बीवी के हकूक पूरे नहीं कर रहे, यह भी जुल्म है। अगर आप अपनी बीवी के अलावा बाहर 10 खवातीन में मुलव्वस हैं, यह भी जुल्म है। अगर आप अपनी बीवी की बीमारी में उसके साथ नहीं खड़े, यह भी जुल्म है। खुदा इससे बेजार है। खुदा चाहता है कि मियां और बीवी एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, उनकी एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि वो जिंदगी की नेमत के वारिस हो और उनकी दुआएं ना रुक जाएं। जिंदगी की नेमत के वारिस होने का क्या मतलब है? जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया था, उनके पास सेपरेट यूनिट था। वो एक तन थे, खुदा की मर्जी को जानते थे, उनमें मोहब्बत और प्यार था, जो 4 बातें हमने सीखी हैं। और वो जिंदगी के दरख्त के सामने रहते थे, उनके अंदर भी जिंदगी थी। मगर जैसे ही उन्होंने नाफरमानी की, गुनाह किया, तो लिखा है कि खुदा ने कहा कि अब चूंकि ये नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानिद हो गए हैं, अब ऐसा ना हो कि ये अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त में से कुछ ले ले। और लिखे कि खुदा ने करोबियों को और शोलाजन तलवार को उस दरख्त के, जो हयात का दरख्त था, उसके चौगिर्द लगाया और आदम और हवा को बाग़ अदन से बाहर कर दिया, जिंदगी की नेमत से महरूम कर दिया। मगर पतरस कहता है कि अगर तुम ये 4 बातें जो मैंने बताई हैं और मैं आने वाले दिनों में जो बताऊंगा उन बातों के बारे में, पतरस कहता है अगर तुम सारे काम करो तो तुम उस पहले आदम और पहली हवा की मानिद जिंदगी की नेमत के वारिस हो जाओगे, जिसके सामने जिंदगी का दरख्त था। हम अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल शक्ल में, जिस तरह खुदा ने हमें मुरत्तब किया है, जिस तरह उसने हमें तख्लीक किया है, हम वैसे बन जाते हैं। और जब हम वैसे बन जाते हैं, तब ही हम जिंदगी की नेमत के वारिस होते हैं। हालेलुया। तब हमारी दुआएं
नहीं रुकती। तब हमारा खुदा से राबता होता है, तब हम खुदा की मर्जी को जानते हैं, तब हम घुटनों पे झुक के कहते हैं खुदावंद मुझसे बात कर, मैं सुनना चाहता हूं तेरी बात। पर अगर हम अपनी बीवी या बीवी अपने खामद के इस रिलेशन में फेल हो गया तो याद रखें आप खुदा के साथ भी रिलेशन में फेल हैं। यह रिश्ता खुदा ने इसलिए दिया कि हम इस रिश्ते के वसीला से खुदा को समझना शुरू करें, खुदा को जान सके। पर अगर हम इस रिश्ते को नहीं समझ पाते तो हम कैसे खुदा को जाने? क्या लिखा है कि अपना भाई जिसको तू देखता है उससे तू मोहब्बत नहीं करता, खुदा जिसको देखने से कैसे मोहब्बत करेगा? बीवी जो सामने है 24 घंटे बंदा उन्हें तूड़ियां चढ़ाए हैं तो कैसे खुदा से मोहब्बत करेगा? बीवी से मोहब्बत करना सीख जाएंगे और बीवी खामन से मोहब्बत करना सीख जाएगी तो वो खुदा से मोहब्बत करना सीख जाएंगे। हालेलुया। खुदा ने सबको बरकत दे। हम अगले हफ्ते इस पे और बात करेंगे।